Hello everyone, I hope you all are good, and today I am going to start your cost accounting second chapter, material cost of TY BCom Sem 5. Now I first introduce myself. I am Professor Zakira Matwankar from Sant Gadge Maharaj College of Commerce and Economics. I am Assistant Professor in Accountancy. Now the second chapter I am starting with first introduction. The second chapter is a material costing. Now we are going to learn about the material cost. So first I start with management desire to keep the proper control over the cost, and generally cost of material is a major portion of the total cost of product. So this is very necessary that management want to control over the cost. Why it is so? Because the cost of material is the major portion of the product. Okay, so जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं हमारा मेजर पोर्शन क्या होता है? द मटीरियल, विच इज अ कॉस्ट ऑफ मटीरियल. ऑलवेज रिमेंबर, जब हमारा कॉस्ट कम होगा तभी हमारा प्रॉफिट क्या होगा? ज्यादा. हेंस द मटीरियल मैनेजमेंट बिकम अ मोर इम्पॉर्टेंट नाउअडेज. सो स्टोर इज ऑल्सो अ सिमिलर टर्म यूज फॉर द मटीरियल, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट स्टोर इंक्लूड्स नॉट ओनली द रॉ मटीरियल but also tools, equipment, spares, oil, lubricant, etc. So inventory is the another term include raw material, semi-finished goods and finished goods, spare, components and other consumer material for running and maintenance of the plant and machinery. Always remember that the production is not only depend on the inventory, or you can say the raw material, the basic material, but also the other material which is needed for the production, and that I discuss here, that is spares, components, other consumable materials. Okay, so all these things are necessary for the production. Without them the production is not done. So raw material which is converted into the final product become a part of the finished good. So see, I'll just giving the example. The three types of the inventory as raw material. I taken the example of the cloth. Okay, so in the ready-made garment, when we have to make the ready-made shirt as a finished goods, so first we have to convert into the semi-finished goods. See, in the ready-made showrooms, have you seen that there are the many different sizes of the shirts are available? So might be there are the different types of the size and their cutting is also different. So रॉ मटेरियल जब क्लॉथ्स खरीदते हैं तो उनको डिफरेंट साइजेस में काटा जाता है एंड देन वो साइजेस को ज्वाइन करके उनका शर्ट बनाया जाता है. सो जो रॉ मटेरियल है वो हमारा क्लॉथ्स होगा, जो उसके पीसेस जो कट किए हैं दैट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस, एंड फिनिश गुड्स जो है हमारा रेडीमेड शर्ट्स है. सो दैट process has done in the ready-made garments. And I taken the second example of charcoal, how to make the charcoal from the raw material. See, this is the raw material, okay, that is a wood, and this is the machine is also a part of the production. So without machinery the production is not possible. So that is a wood crusher. Okay, then after that the crushed sawdust, that is a, you can say the semi-finished goods also, it come into the ड्रायर में चाहता है पूरा हमारा ये जो क्रश सॉडस्ट है, ताकि इसके अंदर अगर किसी तरह से भी कुछ मॉइस्ट वगैरह है तो वो निकल जाए. आफ्टर दैट ड्रायर के बाद जो है हमारा ये जो मशीन है ब्रिक्वेट मशीन, इसमें कन्वर्ट होता है हमारा वुड ब्रिकेट, और उसके बाद जो है उसको कार्बनाइज किया जाता है, एंड देन कार्बनाइज के बाद हमारा चारकोल रेडी होता है. तो दिस इज द होल प्रोडक्शन प्रोसेस. विदाउट दैट, सी यू कैन सी देर आर द मेनी मशीनरीज, एंड विदाउट दैट द प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल. सो दैट्स वाई नॉट ओनली द रॉ मटीरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स, बट वी आर नीडेड द tools, equipment, spares, oil and lubricant. Without that also production is not possible. So these are the important points. Now next is the cost of direct material, that is raw material, is generally higher than the cost of indirect material. Previous lecture I discussed there are the two types of cost, direct cost and
indirect cost. In that we have a direct material and indirect material. So direct material का जो जिससे मेन हमारा प्रोडक्ट बनता है वो है हमारा रॉ मटेरियल. उसका कॉस्ट ऑफ कोर्स ज़्यादा होगा कंपेयर देयर इनडायरेक्ट मटेरियल्स. जैसे हमारे लेबरर्स के लिए अगर हम ग्लव्स खरीदे हैं, पैकिंग मटेरियल्स है, ये हमारे इनडायरेक्ट मटेरियल्स होते हैं. इनका कॉस्ट थोड़ा कम होता है कंपेयर देन द रॉ मटेरियल. सो द कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल मे बी स्मॉलर और negligible, but it is necessary and we cannot ignore it. So non-availability of such material may cause a stoppage of the production. Again I am telling this कि हमारा indirect material भी बहुत ज़रूरी है, उनके बिना भी काम नहीं हो सकता है. So that's why it is absolutely necessary that production should not be held up for want of raw material or stores. See, I given this picture to you to differentiate between indirect material and direct material. See here, the indirect material is gloves, tools, cleaning supplies, helmet, overall official chairs, desk. So ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है, इनके बिना भी काम नहीं होगा. And direct material जैसे timber in furniture, company cotton in shirt factory, then rubber in a tire factory, and leather in a shoes company. So this is the direct material. Might be it is costly and it is less costly, but without indirect material production might be stopped. So that's why it is necessary. Now I'll just give the process of how to convert the raw material into the finished good. It is a small presentation what I done for you. First raw material, and it is gone for the मशीन. जब ये मशीन में जाता है या प्रोडक्शन प्रोसेस में जाता है तो हम उसको एनर्जी सप्लाई करते हैं और उसके बाद इसके अंदर ड्राई या मिक्सिंग या एक्सट्रूशन का प्रोसेस होता है. अगर सपोज हमारा कुछ अगर जो जूस का प्रोडक्शन है तो इसके अंदर जो है मिक्स किया जाता है फ्लेवर्स वगैरह, या जैसे मैंने आपको अभी प्रीवियस एग्जांपल दिया सॉडस्ट का, तो उसको ड्राई किया जाता है. सो दिस इज द थिंग. सो नेक्स्ट उसके बाद इसमें कुछ वेस्ट मटेरियल निकलता है, तो ये वेस्ट अलग किया जाता है और उसके बाद हमारा सेमी फिनिश गुड्स रेडी हो जाता है. अब यही सेमी फिनिश गुड्स को वापस मशीन में डाला जाता है फर्दर प्रोसेस के लिए, और फिर अगर रेडी होता है हमारा सेमी फिनिश गुड्स तो उसको कटिंग और वॉश किया जाता है अच्छी तरह से फॉर द हाइजीनिक पर्पस, और इसमें से जो वेस्ट निकलता है वो वेस्ट मटेरियल में चला जाता है. ओके, आफ्टर दिस कटिंग एंड वॉशिंग हमारा सेमी फिनिश गुड्स रेडी होता है. अगेन आई एम सेइंग दिस सेमी फिनिश गुड्स बिकॉज पैकिंग अभी हमारा बाकी है. देन जब हमारा सेमी फिनिश गुड्स पैकिंग मटेरियल में जाता है, उसको पैक किया जाता है, तो पैकिंग मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है और पैकिंग, इंस्पेक्शन और वेरिफिकेशन किया जाता है. जो पैकिंग मटेरियल का वेस्ट है वो इस बॉक्स वापस इसमें चला जाता है और तब जाके हमारा फिनिश गुड्स रेडी होता है. सो दिस इज द प्रोसेस of production. Now the next slide is for material control. Now what is a material control? Material control is material control in most cases a significant portion of cost. Material is an essential element of cost, and the entire process of the manufacture would be disturbed or even stopped if the right type of material is not available at the right time. So that's why it is very necessary we have to control the material. So हमें जब भी मटेरियल की ज़रूरत होती है, कौन से मटेरियल की ज़रूरत होती है, कितनी क्वांटिटी में ज़रूरत होती है और कौन से प्रोडक्ट कौन से टाइम पे रिक्वायरमेंट है, ये सब जो है मटेरियल कंट्रोल के जरिए किया जाता है. सो इफ दिस फंक्शन इज नॉट प्रॉपरली परफॉर्म देन द एंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस वुड बी अफेक्टेड एंड अदर रिसोर्सेज लाइक मैन मशीन वुड बी रिमेन आइडियल. उनके पास कोई काम नहीं होगा. तो ये सब चीज़ें भी काफ़ी मैटर करती है. सो मटीरियल कंट्रोल एम टू इंश्योर द स्मूथ प्रोडक्शन process. So material control is nothing but we have to provide the material at a right time at a right place and for the smooth production. The material control function can be termed as a systematic control over purchase, storing and using of the material, so to maintain a regular supply of material as and when they are needed and avoiding at the same time excessive holding of the stock. Material हमको टाइम पर तो पहुंचाना है, लेकिन साथ साथ में हमको ये भी ध्यान देना है कि हम ज़्यादा एक्सेसिव क्वांटिटी में हमारा मटेरियल ना हो ताकि जिससे वेस्ट ना हो. सो हमको इस चीज़ को भी अवॉइड करना है. नेक्स्ट इज व्हाट आर द स्कोप ऑफ द मटेरियल कंट्रोल.
The first scope is purchasing. Purchasing, this function covers the timing and the quantity of a purchase, means when to purchase and how much to produce. Okay. Then next is receiving and inspection. जब हम मटेरियल परचेज कर लेते हैं तो हमको ये इंश्योर होना चाहिए कि मटेरियल जो हम रिसीव कर रहे हैं दैट हैज़ टू बी a right type of a quality of a material as required is actually received. So that's why इसका inspection भी ज़रूरी है कि जो हमने purchase किया था वो right quality है और quantity है या नहीं. So inspection process भी इसमें आ जाता है. Now the next is storing. This involves physical safety of material as well as maintaining a store record. The prevention of losses due to pilferage, theft, handling and environmental conditions are covered within this function. Storing is a main function. जब हम purchase करते हैं material तो right place पे, right temperature पे और right quantity में इसको store करना ज़रूरी है. Otherwise we have to face the losses. नेक्स्ट इज इशूइंग. जब माल रेडी परचेज होकर हमारे गोडाउन में आता है तो हम उसको फैक्ट्री को इशू करते हैं. तो फैक्ट्री में जितना प्रोडक्शन होगा उतनी राइट क्वांटिटी में उसको सप्लाई किया जाता है. आफ्टर दैट वी हैव टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ इन्वेंट्री कि हमने कितना मटेरियल फैक्ट्री में भेजा है, इशू किया है और कितना हम मार्केट से परचेज कर रहे हैं. दिस प्रॉपर रिकॉर्ड इग्नोर द लॉसेस. सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी नेसेसरी. Next is inventory control. Proper record is also concerned with the inventory control. अगर हम proper record रखेंगे तो हमको पता चलता है कि हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है, कब हमें परचेज करना है. So that is called the inventory control. Next is objective of material control. Why we need to control the material. First is adequacy of inventory. Now adequacy of inventory means the material should be available whenever is required and it should not run out of the stock. मतलब हमारे पास स्टॉक प्रॉपर रहना चाहिए, ना कि कम और ना ही एक्सेसिव में ज़्यादा, ताकि उसको डैमेज फेस करना पड़े. Next is minimization of the inventory. There should be optimum inventory in stores and must be minimum. मतलब ख़त्म नहीं होना चाहिए, इट शुड बी मिनिमम, ताकि हमारा प्रोडक्शन न रुके. और कितनी क्वांटिटी में भी मिनिमम हो, दैट वी हैव टू रिकॉर्ड इट. After that, continuity of the production. Always remember, material should be sufficient to maintain the continuity of the production. It should not stop for want of materials. अगर materials की कमी की वजह से हमारा production रुक सकता है, so the store control supervisor must take care for that. Next is minimum cost of purchasing. जब भी हम purchase करते हैं या order place करते हैं तो always we have to remember the size or order should be such that the cost of minimum. Next is reduction of wastage. Inventory control is also belongs to reduce the wastage and loss of material. हमें इतना ही मटेरियल परचेज करना चाहिए ताकि इसका वेस्टेज ज़्यादा ना हो. आफ्टर दैट मिनिमम ऑफ रिस्क ऑफ एब्सोलेंसेस. जब हम स्टोर करते हैं प्रोडक्ट को हमारे गोडाउन में तो ऐसे हमको स्टोर करना है, इतनी क्वांटिटी स्टोर करना है ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो या किसी तरह का लॉस ना हो. नेक्स्ट इज यूज ऑफ स्पेस. हमारे पास जितनी स्पेस है उसी तरह उतना ही हमको स्टोरेज करना चाहिए. अगर उससे ज़्यादा आ गया तो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. Effective storage. The objective of the material control is to ensure effective storage of available material. Means variety of item are stored in a systematic manner. हमें इससे systematic manner में proper temperature में according to the types of the material हम store करना पड़ता है. And the next is preparation of budget. We have to maintain or prepare the budget to control the material cost. Next is what are the advantage of material control. The advantages of material, first advantage is avoid delay in production. जब हमारा मेन कंसर्न ये है कि हमारा प्रोडक्शन डिले नहीं होना चाहिए, दिस इज द मेन एडवांटेज. नेक्स्ट इज सक्सेसफुल बजटिंग. हमारा अगर मटेरियल कंट्रोल प्रॉपर रहेगा तो हमारा बजट फेस नहीं करेगा प्रॉब्लम, वी आर इन अ टो. देन एफिशिएंट कॉस्ट अकाउंटिंग. एफिशिएंट कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब मटेरियल कंट्रोल इज नेसेसरी फॉर एफिशिएंट कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम. अगर हमारा मटेरियल कंट्रोल प्रॉपर रहेगा, हमारा जो कॉस्ट है वो खराब नहीं होगा, हमारा कॉस्ट जो है वो प्रॉपर रहेगा. देन प्रॉपर इन्वेस्टमेंट.
Material control is necessary to have a proper इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री. सो एक्सेसिव या बहुत कम जो है इन्वेंट्री अवॉइड की जाती है. प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम डैमेज. अगर हमें पता बराबर मालूम रहता है कि हमें कितना स्टॉक की ज़रूरत है, कितना टाइम पे इशू करना है या परचेस करना है, तो डैमेज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. एंड देन लास्ट इज मैनेजमेंट कंट्रोल. मटीरियल कंट्रोल इज नेसेसरी टू एफिशिएंट मैनेजमेंट कंट्रोल. Effective production, planning, purchasing, store, report facilitate the managerial control. So these are the advantage of material control. Now what are the procedure for purchase? This is the important step. Please concentrate. Purchase करते हैं जब, तो उसके procedures क्या होते हैं. पहला procedure है indenting of material. We have to identify what type of a material we have to purchase. So यहाँ पर जो हमारा जो पहला step होगा, that is we have to identify. Normally the purchase department received the indent for the material. It is printed form and used to make a formal request to the purchase department for procuring of material. और वो form कैसा होता है देखिए. यहाँ पर जो हमारा परचेज डिपार्टमेंट है वो मटीरियल जो स्टोर डिपार्टमेंट होता है उसको रिक्वेस्ट करता है कि हमें अभी इतने मटीरियल की ज़रूरत है और इस तरह से ये फॉर्म बनाया जाता है. दिस इज़ द फॉर्मेट आई गिवन यू एंड दिस इज़ द इंडेंटेड फॉर द मटीरियल फॉर्मेट. इसमें हमको पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कौन सा मटीरियल कितनी क्वांटिटी में कौन सी डेट पर कितने प्लेस कौन सी प्लेस पे ऑर्डर करना है, हमारे कौन से सप्लायर होंगे. सो दीज आर द फॉर्म. दिस इज द एग्जाम्पल एंड आई फॉर्मेट डिस्कस हियर. The next step is selection of the supplier. हमें जिस मटेरियल की ज़रूरत होती है उस सप्लायर से हमको कंसर्न करना पड़ता है. ऐसा सप्लायर जो हमें कम रेट में अच्छी क्वांटिटी में अच्छी क्वालिटी में मटेरियल सप्लाई करे. हमारे पास मटेरियल बहुत अलग अलग मटेरियल की ज़रूरत होती है तो उसके सप्लायर्स भी अलग अलग होते हैं. सो हमारे लिए जो बेस्ट सप्लायर होता है वी हैव टू सेलेक्ट दैट सप्लायर. द नेक्स्ट स्टेप इज इशू ऑफ परचेज ऑर्डर. जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं हु विल बी द सप्लायर, तो हम परचेज ऑर्डर इशू करते हैं कि हमें कितने मटेरियल की ज़रूरत है और ये परचेज ऑर्डर इस तरह से होता है. ये इसका फॉर्मेट है परचेज ऑर्डर का. ओके यहाँ पर भी जो है पूरी डिस्क्रिप्शन रहती है मटेरियल की, क्वांटिटी रहती है, प्राइस, टर्म्स सब अवेलेबल होता है. द नेक्स्ट स्टेप इज रिसिप्ट ऑफ मटीरियल. जब परचेज ऑर्डर इशू किया जाता है तो मटीरियल डिपार्टमेंट या जो हमारा स्टोर डिपार्टमेंट है वो रिसिप्ट ऑफ मटेरियल देता है कि यस दिस इज राइट एंड वी कैन ऑर्डर दिस मटेरियल. आफ्टर दैट इंस्पेक्शन. जब हमारे पास मटेरियल रेडी होता है या आ जाता है हमारे गोडाउन पे, तब जो है हमारे सुपरवाइज़र है वो या इंस्पेक्टर जो रहता है इंस्पेक्शन इंस्पेक्टर वो पूरी तरह से इंस्पेक्ट करता है, वेरीफाई करता है कि ये मटेरियल है या नहीं. और इंस्पेक्ट करने के बाद ये अपनी मटेरियल इंस्पेक्शन नोट इशू करता है जिसमें से डिस्क्रिप्शन होता है, उसका कोड होता है, कितनी क्वांटिटी रिसीव हुई और कितनी रिजेक्ट हुई. तो रिसीव में एक्सेप्टेड भी कुछ पार्ट होते हैं और रिजेक्ट भी. अगर हमने कुछ पार्ट रिजेक्ट किया है तो क्यों किया है. आप लोगों ने फाइनल अकाउंट में हमेशा देखा होगा कि सेल्स रिटर्न होता है या परचेज भी रिटर्न होता है. तो उस तरह से जब परचेज रिटर्न होता है बिकॉज ऑफ सम रीज़न, तो वो रीज़न हमें यहाँ लिखना पड़ता है. दिस इज द इंस्पेक्शन. एंड द नेक्स्ट इज गुड रिसीव. और उसके बाद जो है इंस्पेक्शन के बाद गुड रिसीव किया जाता है और गुड रिसीव नोट जो है स्टोर इशू करता है कि हमने कितनी क्वांटिटी में गुड्स लिया, कितने रुपए में, और उसका रिमार्क दिया जाता है. ठीक है. सो दिस इज द फॉर्मेट. एंड नेक्स्ट इज चेकिंग ऑफ इनवॉइस एंड पेमेंट टू द सप्लायर. हम इनवॉइस चेक करते हैं और फिर सप्लायर को पेमेंट करते हैं कि हमने इतना इतना जो है गुड रिसीव किया है. और लास्ट है वी हैव टू कंट्रोल द परचेज कंट्रोल, कि हम राइट क्वांटिटी में राइट क्वालिटी में हम हमारा परचेज करेंगे, ना कि ज़्यादा और ना ही बहुत कम. द नेक्स्ट पार्ट इज जैसे हमारा परचेज का प्रोसीजर होता है वैसे इन्वेंट्री इशू की जाती है और यानी हमारा स्टॉक इशू किया जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में. उसका क्या प्रोसीजर है. उसके दो प्रोसीजर है. फर्स्ट मटीरियल रिक्विजिशन एंड सेकेंड इज बिल ऑफ मटीरियल. नाउ व्हाट इज अ मटीरियल रिक्विजिशन. मैंने आपको परचेज ऑर्डर में पूरा बता दिया, पूरा फॉर्मेट, पूरा स्टेप बाय स्टेप. उसी तरह से हमारा जो इशू का है वो किस तरह से होगा. व्हाट इज द मटीरियल रिक्विजिशन. इट इज अ डॉक्यूमेंट विच इज यूज्ड टू ऑथराइज एंड रिकॉर्ड द इशू ऑफ मटीरियल फ्रॉम द स्टोर्स.
प्रॉपर क्वांटिटी में हम जो अपना स्टॉक फैक्ट्री को देते हैं प्रोडक्शन के लिए, उसका रिकॉर्ड जो है यहाँ पर किया जाता है और उसका रिकॉर्ड इस तरह से लिखा जाता है कि कौन सा हमारा, इस तरह से सीरियल नंबर्स होते हैं, प्रोडक्ट का मटेरियल का कोड होता है, उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, और यहाँ पर जो है ऑथोराइज पर्सन की सिग्नेचर्स होती हैं। और जब हम मटेरियल प्रोवाइड करते हैं तो सेकंड स्टेप आता है हमारा बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल क्या है? इट इज़ द लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटीज ऑफ ऑल मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द पर्टिकुलर जॉब। अगर हमें कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या मटेरियल के रिक्वायरमेंट है इसमें लिखा जाता है। इट इज़ प्रेजेंटेड बाय प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड इन प्रेस्क्राइब फॉर्म आफ्टर एक्सेप्ट एन ऑर्डर। देखिए ये इस तरह से जो है बिल ऑफ मटेरियल का फॉर्मेट है। इसमें भी जो है कि कौन कौन से मटेरियल इशू हुए हैं, कितनी क्वांटिटी में, डेट ऑफ इशू, रेट एंड टोटल वैल्यू दी जाती है। सो दिस इज द फॉर्मेट। नाउ द नेक्स्ट इज स्टॉक लेवल्स। इन्वेंट्री में जो या हमारे स्टॉक में लेवल्स होते हैं और हमारे 5 टाइप्स के स्टॉक लेवल्स होते हैं, और वो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट इज माय मैक्सिमम लेवल। Now what is the maximum level? This level indicate maximum quantity of stock to be held at any time। यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम कितनी क्वांटिटी रख सकते हैं अपने पास, इसको कहते हैं मैक्सिमम लेवल। मतलब हमारे गोडाउन में ज़्यादा से ज़्यादा कितना माल रह सकता है, ना एक्सेसिव नहीं रहना चाहिए। सो उसका कैलकुलेशन जो होता है तो उसको कहते हैं मैक्सिमम लेवल। सेकेंड आता है हमारा मिनिमम लेवल। दिस लेवल इंडिकेट मिनिमम क्वांटिटी ऑफ स्टॉक टू बी हेल्ड एट एनी टाइम। यानी कम से कम कितना स्टॉक हमें रखना चाहिए जिसकी वजह से प्रोडक्शन ना रोके। नाउ द नेक्स्ट इज रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल इंडिकेट द टाइम टू प्लेस ऑर्डर फॉर द मटेरियल। ये इंडिकेट करता है कि अब टाइम आ गया है कि हमें नेक्स्ट ऑर्डर मटेरियल परचेज करने के लिए करना चाहिए, तो इस लेवल पर हम मटेरियल परचेज करते हैं। द नेक्स्ट इज डेंजर लेवल। अगर मिनिमम लेवल से भी कम हो गया हमारा स्टॉक तो हमको डेंजर लेवल फेस करना पड़ता है। सो इट इंडिकेट्स द लेवल ऑफ स्टॉक व्हेन द नॉर्मल इशू शुड बी स्टॉप। मतलब हमारे पास जब माल खत्म होने वाला रहता है जिससे प्रोडक्शन रुक सकता है, दिस इंडिकेट द डेंजर लेवल। एंड एवरेज स्टॉक लेवल, इट इज द एवरेज ऑफ मैक्सिमम लेवल एंड मिनिमम लेवल। इट इज एन एवरेज स्टॉक ऑफ मटीरियल इन द स्टॉक। अगर कोई ऐसी कंपनी है ना ज़्यादा से ज़्यादा ना कम से कम माल रखना चाहती है तो वो एवरेज स्टॉक रखती है जिससे किसी तरह का कोई इफेक्ट ना हो। सो दीज आर द 5 लेवल ऑफ स्टॉक। I just giving the formulas of these 5 level of stock। ये मैं आपसे formulas इसके शेयर कर रही हूँ। Please go through it one by one। See this maximum level में हमको reorder level जो calculation reorder level से जो आएगा उसकी reorder quantity डालना है। minimum rate of consumption and minimum order period। period जो है time discuss करता है, might be it is in month, might be it is in a week और might be it is in a year। सो इस तरह से जो है इस 5 फॉर्मूले के थ्रू जो है हम हर तरह के स्टॉक लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है स्टॉक लेवल का। यहाँ पर जो हमको बताता है, देखिए सब में कम स्टॉक आता है हमारे डेंजर लेवल पे। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है स्टॉक लेवल, वाई एक्सिस जो है रिप्रेजेंट करता है टाइम। सो डेंजर लेवल सब में नीचे है, देन मिनिमम लेवल, देन रीऑर्डर लेवल एंड मैक्सिमम लेवल। इन सब के मिड में जो है वो हमारा एवरेज लेवल आता है, और ये जो है हमारा नॉर्मल टाइम जो है डिस्क्राइब करता है कि कौन से टाइम पे कब कौन से मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो दीज आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट इज फैक्टर वाइल फिक्सिंग द स्टॉक लेवल। जब हम स्टॉक लेवल डिसाइड करते हैं कि कौन सा लेवल पर हमको काम करना चाहिए तो कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट इज फंड्स एंड कैपिटल आउटले। हमारे पास कितना पैसा है वो ऑफकोर्स मैटर करता है, उसी हिसाब से जो है हम ऑर्डर दे सकते हैं हमारे मटेरियल पे। सो वही डिसाइड करता है कि कौन सा लेवल पे हमको काम करना है, वेदर इट इज़ मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज। सेकेंड इज स्टोरेज स्पेस। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जितना हमारे पास स्पेस होगा हम उस लेवल पर काम करेंगे। अगर मैक्सिमम लेवल पर हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है तो हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, माइट बी इट विल बी एवरेज। तो हमारे स्टोरिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज स्टोरेज लॉस। ये भी ध्यान देना है कि हमें इतना स्टोर करना है कि किसी तरह से लॉस ना हो। जैसे अगर हम कोई चीज़ ज़्यादा स्टोर करते हैं और प्रोडक्ट पेरिशेबल हो तो टाइम आने पर या टाइम ज़्यादा होने पर वो प्रोडक्ट खराब होने के चांसेस होते हैं। सो दैट्स वाई वी हैव टू टेक द स्टोरेज ऑफ लॉस।
Next is cost of storage. Always remember, cost of storage will be not increase because it increase the cost of production. हमारे स्टोरिंग कैपेसिटी इतनी रखना चाहिए कि हमारी कॉस्ट जो हो कम हो उसमें. देन रेगुलरिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, हमें इस लेवल पर काम करना चाहिए कि हम जो है रेगुलर बेसिस पे फैक्ट्री में इशू कर सकें हमारा मटेरियल, हमारा प्रोडक्शन नहीं रुकना चाहिए. नेक्स्ट इज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ मटेरियल. हमारा रेट क्या होगा प्रोडक्शन का, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल का, दैट इज ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. एंड नेक्स्ट इज लीड टाइम और टाइम लैग, और यू कैन से द ideal time. It is the time involved between identification and receiving of the material. The time involved of indenting, calling, analyzing and quotation, offer, placing order, complying with procedure of supplying authority. Okay, so this is very necessary. नेक्स्ट इज प्राइस फ्लक्चुएशन एंड प्राइस एडवांटेज. हमें ये भी ध्यान देना है कि कब मटेरियल का प्राइस ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, तो हमें बेटर कॉस्ट में जब प्राइस में जब भी हमको मिलेगा प्रोडक्ट हमको परचेस करना है. एंड द नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या री ऑर्डर क्वांटिटी. द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और री ऑर्डर क्वांटिटी फिक्स द इफेक्ट ऑफ द नंबर ऑफ परचेजेस एंड कॉन्सिक्वेंटली द स्टॉक है. यानी हमें कौन से कॉस्ट पर कितनी क्वांटिटी सही कॉस्ट में, कम से कम कॉस्ट में रखनी चाहिए, इसे कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. आई एम गिविंग द brief introduction of the economic order quantity. This is the technique to determine how much to buy actually. So the purchase and storing function involve certain cost. ठीक है, स्टोरिंग और परचेज में एक मेन जो मिड कॉस्ट होता है जिसे हम बेयर कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, इसको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं. व्हेन स्टॉक इज इंक्रीज, जब स्टॉक हमारे पास ज्यादा होता है तो ऑफ कोर्स नंबर कैन बी रिड्यूस. हाउ? See, cost of storing would increase but cost of placing order would be decrease. अगर हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है तो हम ऑर्डर बार बार नहीं देंगे, जिससे ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारा रिड्यूस हो जाता है. सिमिलरली जो है, अगर ये कॉस्ट ऑफ ऑर्डर इंक्रीज होता है तो हमारा स्टोरिंग कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होता है, वाइस वर्सा, अपोजिट डायरेक्शन. सो इकोनॉमिक क्वांटिटी स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन, इट इज नथिंग बट the balance between the two objective, minimize the cost. At EOQ the ordering cost is equal to carrying cost. Okay, so EOQ के कितने एलिमेंट है? What are the elements of EOQ? There are the three elements of EOQ. Order cost. What is next? First is, what is order cost? This is the aggregate cost of purchase and receiving function spread over the number of likely orders. देखिए, हम जितनी बार भी ऑर्डर देते हैं उसका कॉस्ट बढ़ता है, तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि ऑर्डर्स में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी मंगाए ताकि हमारा ऑर्डर कॉस्ट रिड्यूस्ड हो. नेक्स्ट इज कैरिंग कॉस्ट. जब हम ज़्यादा से ज़्यादा भी क्वांटिटी मंगाते हैं तो हमारा जो है कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है या स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाता है. तो ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि इतना भी हम स्टोरेज ना करें ताकि हमारा स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाए. सो this take into an account the cost of storage, handling, insurance cost spread over quantity or value of material. And next is annual consumption. The total storage and order cost depend upon the annual consumption, कि हमारा annual consumption क्या है, हम annually कितना production कर रहे हैं. It gives the information about the total consumption in the terms of unit, and there is a positive relation between order size and carrying cost. कंप्यूटेशन ऑफ EOQ. EOQ को तीन तरीके से कंप्यूट किया जाता है. फर्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सेकंड टेबुलर मेथड और थर्ड मैथमेटिकल इक्वेशन. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए, यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है. एक्स एक्सिस में आप देखेंगे कॉस्ट डिस्क्राइब कर रहा है और यहाँ पर क्वांटिटी डिस्क्राइब कर रही है. सो जितना हमारा ऑर्डर ज़्यादा होगा उतना ही हमारा ऑर्डर जो कॉस्ट भी ज़्यादा होगा, तो इस तरह से जो हमारा कैरिंग कॉस्ट वो है वो बढ़ेगा. लेकिन अगर हमारा यहाँ पर ऑर्डर क्वांटिटी कम होगी तो यहाँ पर देखिए हमारा ऑन एनुअल कॉस्ट क्या हो जाएगा, रिड्यूस. ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. तो हमको एक ऐसा इक्विलिब्रियम पॉइंट सेलेक्ट करना है जिससे हमारा EOQ फिक्स्ड हो, ना कि हमें ज़्यादा लॉस बेयर करना पड़े. सो दिस इज द बैलेंस बिटवीन द कैरिंग कॉस्ट एंड द स्टोरेज कॉस्ट.
Now the tabular format. This is the format of tabular format. When we are calculate, we will give an idea, but this is the 8 columns we have to make to calculate the economic order quantity. And next is mathematical formation. This is the mathematical formula of EOQ. Root 2 AR means annual consumption जो है आपका, O मतलब order cost और upon CC मतलब carrying cost, ये आपका mathematical equation है. So these are the formula. By this EOQ we have to calculate. If you have any doubt, please write in a comment box. Thank you very much. And if you have any problem or you need any type of the explanation, please write in a comment box. Thank you so much. Have a good day. Bye.